fact, it's really sad to see that Australian universities have banned Indian students, and especially from 5 states. But also, they have given the reasons for that. Hello, this is Pradeep Das Gupta, Director of St. Xavier's College, Bareilly. After I read the details about this ban on Indian students and from 5 Indian states, I found it really shocking. And today I want to give information to all the students who are planning to go to Australia. But the good thing is, the entire Australian universities in Australia have not banned Indian students. Only a few Australian universities have banned Indian students. Now let's see which universities have banned students from Punjab, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan, and even Gujarat. Torrens University, Western Sydney University, Edith Cowan University, Victoria University, Southern Cross University, and Federation University. These Australian universities have banned Indian students. They have rejected the visas for students from 5 states, especially Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and even Jammu Kashmir. The latest news is that some of the colleges are also now scrutinizing the documentation of Indian students. To all the students who are going abroad, especially Australia, New Zealand, Canada, it is an advice that whenever you are going to these countries, please carry authentic and genuine documents. Otherwise, these countries have stringent laws and students can end up being deported and end up their career. So my advice is that whenever you go abroad, please carry your authentic documents, and whenever you are applying for visa, please produce authentic documents. Phil Honeywood, the Chief Executive Officer of International Education Association of Students in Australia, that the parents in India want their children to go and study in Australian universities, but they depend more on the agents. The students are responsible for their own actions and all the documentations when they arrive in these countries. हमारे चैनल में गरम जोशी से आपका स्वागत है। आज हम आए हैं वेल्किन एडुप्रोज एंड इमिग्रेशन सर्विस में, और आज हमारे खास मेहमान हैं हरसिमरन सिंह संधू जी। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरी जो संस्था है इसका नाम है वेल्किन एडुप्रोज एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। हमारे बेसिकली 3 ऑफिस हैं इन मोहाली, सेकंड इन पूरनपुर एंड थर्ड हियर इन द बरेली। और मेरा नाम है हरसिमरन सिंह संधू। सर, विदेश में पढ़ाई के क्या बेनिफिट हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स इन स्टडिंग फॉरेन। मेन बेनिफिट जो हमें मिलता है वो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि वहाँ पे जो स्टडी है वो हमसे काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी और स्टडी प्रेपरेशन के मामले में अगर हम देखें तो। और दूसरा, वहाँ पे बच्चा पढ़ने के बाद अगर एक इंटरनेशनल डिग्री लेके वापस इंडिया में आके काम करना चाह रहा है या वर्क करना चाह रहा है तो उसे बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसे हायर मैनेजरियल पोजीशन पे काम करने का मौका मिलता है।
और अदरवाइज अगर बच्चा वहाँ पे सेटल होना चाहता है तो बच्चा वहाँ पे भी सेटल हो सकता है। सर प्रोसीजर क्या है, कैसे स्टार्ट होता है? There are the main different 5 countries in which we deal: Canada, USA, Australia, New Zealand and United Kingdom. So हर एक कंट्री का अलग अलग प्रोसेस है वीज़ा फाइलिंग के लिए फॉर द स्टडी वीज़ा। एंड अगर हम जनरली बात करें तो इन ईच एंड एवरी कंट्री रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो डिफरेंट। डेफिनेटली अगर हम शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले हमें बच्चे का ऑफर लेटर अप्लाई करना होता है। देन देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स, बच्चे की फीस फिल करनी है। कनाडा में जैसे हमें जीआईसी देना पड़ता है तो बाकी और कंट्री में हमें जीआईसी नहीं देना होता। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तो हर एक कंट्री के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बट मेन जो बच्चे का आप प्रोसीजर देखोगे वो यही है कि बच्चे का ऑफर लेटर आएगा, बच्चे की फीस जो है वो दी जाएगी, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें कंप्लीट करनी होती है। देन वी हैव टू लॉन्च द फाइल एंड वी गेट द वीजा। सर ऐसा आप में क्या है जिससे बच्चों को आपके साथ जाना चाहिए? There are lots of things that we only offer at the Valkin EduPros. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम प्रेपरेशन की बात करें तो फॉर द पीटी वी हैव द डिफरेंट लैब फॉर द स्टूडेंट्स। एंड अगर हम आइल्स की बात करते हैं तो हमारी जो फैकल्टी है पूरी की पूरी फैकल्टी दे आर द ग्रेजुएटेड। एंड देन ईच एंड एवरी ट्रेनर इज हैविंग द 7+ बैंड स्कोर्स। देन अगर हम वीजा की बात करें तो दैट इज द टोटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। बच्चे को हर एक स्टेप पे बताया जाएगा कि आपकी फाइल में क्या क्या हो रहा है, आपकी फाइल किस तरह प्रोसीड हो रही है। इट्स नॉट लाइक दैट कि बच्चे को ये कहा जाए कि हाँ आपका वीजा आ जाएगा तो आपको बता देंगे, आप हमें परेशान ना करें, हम आपको ये नहीं बता सकते वो नहीं बता सकते, हमारी ये पॉलिसीज है। ऑब्वियसली स्टूडेंट इज हेयर फॉर द सर्विस एंड वी विल प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंट सर्विस टू देम। सर क्या विदेश में भारतीय बैंक छात्रावास की सुविधा देती हैं? जी जी जी, वहाँ पे बहुत सी बैंक्स हैं जो छात्रावास की सुविधा देती हैं। सर हमने सुना है इंग्लिश का एक टेस्ट देना पड़ता है, वो क्या होता है? हाँ, इंग्लिश के काफ़ी टेस्ट हैं जो हमें देने पड़ते हैं, उनमें से हम कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्यों है कि अगर हम एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो हमें वहाँ पे सर्वाइवल के लिए, वहाँ पे पढ़ने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए और बात करने के लिए फॉर द कम्युनिकेशन वी शुड नो देयर लैंग्वेज। तो उसके लिए देर आर द रिक्वायरमेंट्स के आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको पीटी देना पड़ सकता है, दैट इज द पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। There is the IELTS International English Language Testing System. Even we are having the CELPIP CD IELTS. तो इनमें से कोई भी इंग्लिश का टेस्ट देना अनिवार्य है। इसका रीजन यही है कि अगर हम किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो हमें उनकी लैंग्वेज आती हो, क्योंकि बच्चे ने वहां पे पढ़ना है, वहां पे सर्वाइव करना है, वहां पे काम करना है, तो इसके लिए हमें एक इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है। सर क्या स्कोप है इसके? स्कोप इसका हमें हमेशा ही बेनिफिट मिलता है। ऑब्वियसली इंग्लिश को लैंग्वा फ्रिंका कहा जाता है। द मेन थिंग इज दैट कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऐसी लैंग्वेज जिसे समझा जाता है दैट इज द इंग्लिश, जिसे सबसे ज्यादा बोला जाता है। तो उसी की वजह से ये टेस्ट अगर हम देते हैं या इंग्लिश को सीखते हैं तो थ्रू आउट द होल लाइफ वी विल गेट द बेनिफिट। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो भी उसे बेनिफिट होगा, अगर बच्चा काम कर रहा है तो भी उसे बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली थ्रू आउट द होल लाइफ इंग्लिश आपको बेनिफिट करेगी। और अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, वहां पे काम करना चाह रहे हो, वहां पे पढ़ना चाह रहे हो, तो इट विल बी गिव यू एडिशनल बेनिफिट्स। सर आम आदमी इसे अफोर्ड कर सकता है आज की महंगाई को देखते हुए? जी, स्टडी अब्रॉड जो है दैट इज क्वाइट, आप कह सकते हैं कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग उसके हिसाब से, फीस के हिसाब से अलग अलग कंट्री में अलग अलग हमें पे करना पड़ता है। बट अगर हम जनरली बात करें तो जैसे यूके है दैट इज द क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज ऑफर टू अस, तो उसमें फिर भी हमें लगभग 12-13 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। अगर हम कनाडा की बात करें तो 20 से 22 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। बट द थिंग इज पॉइंट वी आर हैविंग हियर कि बहुत सी बैंक्स हैं जो एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड करती हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे बाहर। अगर आप एक बढ़िया छात्र हो और अगर आप बाहर जाना चाहते हो पढ़ने के लिए तो लोन्स की सुविधा है, आप लोन लेके बाहर पढ़ने जा सकते हो। सर आपके इंस्टीट्यूट का मिशन क्या है सर? हमारे इंस्टीट्यूट का मिशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में अवेयर किया जाए। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, तो वी आर क्वाइट
वर्किंग इन द डिफरेंट मैनर। जैसे बच्चे की फाइलिंग की ही बात है, तो हम बच्चे की फाइलिंग बच्चे को पास बिठा कर करते हैं। हम ये कहते हैं उन्हें कि अगर आपको कनाडा की फाइलिंग करवानी है, ऑस्ट्रेलिया की, चाहे न्यूजीलैंड की है, यूएसए की है, यूके की है, आप थ्रू आउट द प्रोसेस तो हम आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहेंगे ही। जब हम बच्चे की फाइल लॉन्च करते हैं तो बच्चे को ऑफिस में बुला के बच्चे के सामने उसकी फाइल लॉन्च करते हैं। तो इसी के अलावा जैसे आयल्स की बात है, अगर हम आयल्स की या पीटी की बात करें तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि हाँ यहाँ पे मेरे 8 बैंड आए थे तो मेरे एग्जाम में इससे कम आ गए। दैट वी कैन गारंटी कि अगर हमारे पास बच्चे के 7 बैंड स्कोर आ रहे हैं तो एग्जाम में जाके उसका आधा या 1 बैंड स्कोर ऊपर ही आएगा, कम नहीं आएगा, क्योंकि हम बच्चे को उसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा मिशन यही है कि बच्चों को बढ़िया एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करवाई जाए, बच्चों को बढ़िया ऑप्शंस दिए जाएं, उनको सही काउंसलिंग, सही अवेयरनेस उनको मिले और बच्चे अपने भविष्य को बढ़िया बनाएं, उज्जवल बनाएं। सर क्या आपके यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है? जी, जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फैमिली से, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो हम उनको यहाँ पे फीस वगैरह में भी बच्चों को डिस्काउंट देते हैं, बिकॉज वी वांट कि बच्चे पढ़ें, ना कि हम अपने बेनिफिट के बारे में ही सोचें। और इवन फॉर द यूनिवर्सिटीज, अगर बच्चा स्टडी के लिए जा रहा है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो वी ट्राई कि बच्चा अगर बढ़िया है, बच्चा पढ़ने में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो उनको जितनी से ज्यादा स्कॉलरशिप मिल सकती है उतनी स्कॉलरशिप उनको दिलवाई जाए। सर आपका सक्सेस रेट क्या है? बाय गॉड्स ग्रेस इट इज नाउ 100%। अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसे हमने एग्जाम के लिए भेजा हो और उसके बैंड स्कोर ना आए हो, जो हमने वीजा अप्लाई किया हो उसका वीजा ना आया हो, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका ऐसा है कि अगर हमें लगता है देयर इज प्रॉब्लम इन द फाइल और एम्बेसी इस वजह से उन्हें रिजेक्ट कर सकती है, तो हम उस बच्चे को पहले ही मना कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट हर्ट्स, बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता है। बट कल को बच्चा फाइल अप्लाई करेगा, बच्चे का वीजा नहीं आएगा, तो उससे अच्छा है कि बच्चे को पहले ही बता दिया जाए कि इस आपकी जो प्रोफाइल है इसमें ये दिक्कतें हैं, इनको सही करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आपका वीजा आ सकता है। सर जो बाकी और कंसल्टेंसीज हैं उनसे आपकी कंसल्टेंसीज कैसी अलग है सर? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो हमारा प्रोसेस है वो टोटली ट्रांसपेरेंट है। फाइलिंग हम बच्चे को सामने बिठा के करते हैं ताकि बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे, उसे पता हो कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। देन अगर हम स्टडी की बात करते हैं, पीटी की बात करें या आयल्स की बात करें, तो हमारी फैकल्टी ही हमने वैसी हायर की हुई है, सभी के सभी ग्रेजुएटेड हैं, उनके जो बैंड स्कोर हैं वो 7 से ऊपर हैं। अगर हम चाहे पीटी की बात करें, चाहे हम आयल्स की बात करें, तो उसी की वजह से जैसा मैंने रिजल्ट भी आपको बताया कि अगर हम कहेंगे 7 बैंड स्कोर आपके आएंगे तो आपके 7.5 या 8 बैंड स्कोर ही आएंगे, क्योंकि आपको प्रिपेयर उसी तरह से किया जाता है। और दूसरा कि हम बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहे, हमारा मिशन यही है कि बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दी जाए, बच्चों को अवेयरनेस हो, बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे समझ जाएं और बच्चों को आगे की आगे उनकी हेल्प मिलती रहे। नॉट इवन हेयर कि अगर जब तक बच्चे की फाइल है हमारे पास, बच्चे का वीजा आ गया तब तक ही नहीं, इवन बच्चा जब विदेश चला जाता है, बाहर चला जाता है, वहां पे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो बहुत से बच्चे हमारे पहले ही वहां पे पहुंचे हुए हैं, तो वो उनकी हेल्प करते हैं। इवन फॉर द जॉब, बच्चे की इंटरव्यूज है वो हम अरेंज करवा देते हैं, बच्चे के फंड्स हैं तो उनको भी हम मैनेज करते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद भी अगर बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो हम उसमें भी बच्चों की हेल्प करते हैं। सर अभी हमने सुना है कि भारतीय बच्चों को कनाडा से मतलब उनका स्टे वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है उन्हें, तो उसके पीछे सर क्या है? जी, कुछ बच्चे हैं वहाँ पे, लगभग 700 बच्चे हैं जिनकी डेपोटेशन की न्यूज आ रही है कनाडा से। वो उनकी दिक्कत ये हुई थी कि जो उनके ऑफर लेटर्स थे वो फेक पाए गए हैं, तो उसी की वजह से कनाडा, कोई भी कंट्री की अगर हम बात करें, तो अगर हम उन्हें मिसलीड करते हैं या इन्फॉर्मेशन हम सही नहीं देते हैं तो वो कंट्रीज उनको बहुत स्ट्रिक्टनेस से लेती हैं। तो यही दिक्कत आ रही है, उन बच्चों के जो ऑफर लेटर थे वो फेक थे और अब उन बच्चों की जो पीआर है वो होल्ड पे डाल दी गई है, उन बच्चों को डिपोर्ट करने की बात हो रही है। इवन वहां पे बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो बच्चों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी वी आर होप फॉर द बेस्ट कि उन बच्चों को वहीं पे रखा जाए, क्योंकि इसमें बच्चों की तो कोई भी मिस्टेक नहीं है। वो कंसल्टेंट से जिन्होंने फेक ऑफर लेटर प्रोवाइड करवाए थे बच्चों को, बच्चों ने तो कनाडा में फेथ ही दिखाया है और बच्चों ने वहां पे मेहनत की है इतने साल, तो उसका फल उन्हें जरूर मिलना चाहिए। सर आप कोई मैसेज स्टूडेंट या उनको पेरेंट्स को देना चाह रहे हो? किन पेरेंट्स को?
सर जो भी व्यूअर्स हैं हमारे या फिर जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को। जी 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 बेसिकली हमारा यही मैसेज है बच्चों के लिए कि आप जितनी भी मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं ज़िंदगी में आप उतनी मेहनत कीजिए। लाइक नाउ इन दिस एरा वी आर हैविंग द लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। बच्चे कई बार ये समझ नहीं पाते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो उन चीज़ों के लिए हम हैं यहाँ पे, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। वी विल गाइड यू थ्रू आउट द होल प्रोसेस। एंड आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी राजे, जितना आप जिंदगी में मेहनत करोगे उतना ही आप आगे जाओगे। सर आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रहे हो बरेली एजुकेशन न्यूज़ को? यस, बरेली एजुकेशनल न्यूज़ इज डूइंग द फैंटास्टिक वर्क इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ये बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, बच्चों को नॉलेज मिल रही है। बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों के डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, बच्चों को पता लग रहा है कि क्या करना है, किस तरह से करना है। तो बहुत सी हेल्प बच्चों को मिल रही है। सो आई विश द गुड लक टू द बरेली एजुकेशन न्यूज़। सर बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। सर आपकी संस्थान दूसरी संस्थानों से कैसे अलग है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देयर आर द लॉट्स ऑफ पॉइंट्स इन विच वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो हमने कुछ ऐसे बच्चों के वीज़ाज भी लेके आए हैं जिन बच्चों को बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने या इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ने मना कर दिया था। जैसे कि कनाडा के हमारा एक स्टूडेंट है, बच्ची का नाम है जसदीप कौर, तो उनका 10 साल का गैप है, तो उनका हम वीज़ा लेके आए हैं। कनाडा के ही और बहुत से बच्चे हैं जिनका 8 साल का गैप है, 6 साल का गैप है, तो उनके वीज़ाज आए हैं हमारे थ्रू। देन अगर हम इमिग्रेशन की दूसरी चीज़ की बात करें तो वो ये है कि हमारा जो प्रोसेस है दैट इज़ द टोटली ट्रांसपेरेंट। थ्रू आउट द प्रोसेस बच्चे को हर एक चीज़ बताई जाती है, उनकी फाइल में क्या हो रहा है। एंड थर्ड, जब बच्चे की फाइलिंग होती है, चाहे वो कनाडा की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, अमेरिका की हो, न्यूजीलैंड की हो और यूके की हो, हम बच्चे को सामने बिठा के उसकी फाइल लॉन्च करते हैं। तो सारा प्रोसेस बच्चे के सामने होता है। और इमिग्रेशन को छोड़ के अगर हम बात करते हैं IELTS या PT की, तो हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो सारे ग्रेजुएटेड हैं और सभी के बैंड स्कोर 7+ है। तो वो जब बच्चों की प्रेपरेशन कराते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों का रिजल्ट बेटर आता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम बच्चों को कहते हैं कि आपके 7 बैंड स्कोर आएंगे, तो जब बच्चा एग्जाम देने जाएगा उसके बैंड स्कोर उससे आधा या एक बैंड स्कोर उससे ऊपर ही आएगा, कभी उसका बैंड स्कोर कम नहीं आएगा, क्योंकि हम बच्चे को प्रिपेयर ही अंडर द एग्जाम कंडीशंस करवाते हैं। चैनल में गरम जोशी से आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ग्लोबल एजुकेशन में। आज हमारी खास मेहमान है हिमांशी सक्सेना मैम। मैम क्या बेनिफिट है विदेश में पढ़ाई के? हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशी सक्सेना है। मैं ग्लोबल एजुकेशन टैलेंट में हेड काउंसलर हूँ। आज कुछ बातें हम उस पर करेंगे जिससे हम बच्चों के लिए थोड़ी पाथ की तरफ उनको लेके जाएंगे कि किस तरीके से वो अपनी जर्नी और वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम फ़ायदों की बात करें तो आजकल स्टडी सबको पता है कितनी मैंडेटरी है। और जब आप इंटरनेशनल स्टडीज़ की बात करते हो तो इंडिया से तो ऑफ कोर्स उसका लेवल बहुत अप है in terms of curriculums, in terms of kind of material they provide. So when we study in abroad, हमारे options इतने ज़्यादा खुल जाते हैं जॉब्स के। आजकल की हर मल्टीनेशनल कंपनी ये चाहती है कि उसको एक ऐसा बंदा मिले जो बाहर, क्योंकि अगर आप बाहर से पढ़ के आते हो तो आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं जो वहाँ यूज़ होते हैं। एंड एवरीबडी वांट्स कि वो आइडियाज़ उनकी कंपनी में यूज़ हो, इसलिए बच्चे बाहर पढ़ते हैं और उनको बेटर जॉब्स विद हाई पैकेज। कोई भी एक MBA की डिग्री अगर आप इंडिया से करते हो और वही सेम डिग्री आप UK से करके आते हो या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहीं से भी करके आते हो, उसके आपका पैकेज जो हो जाता है उसमें खुद में ज़मीन आसमान का फर्क है। इसीलिए आजकल इंटरनेशनल स्टडीज़ को हम इतना प्रमोट कर रहे हैं। मैम प्रोसीजर क्या है, स्टार्ट कैसे होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा फ्लो से बताइए। और मैम आपकी जर्नी क्या है इसके बारे में भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोसीजर इतना सिंपल है, लेकिन हर एक बच्चा उसको खुद से नहीं कर सकता। इसीलिए हम मार्केट में बरेली में नए सेंटर ओपन किया है, 2 हमारे और भी सेंटर्स हैं। बट हम आगे चाहते हैं कि इधर के बच्चे भी, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से पहले
फ्रॉड एप्लीकेशन और ये सब बहुत हो रहा था। एजेंट्स ने इतनी सारी एप्लीकेशन ऐसी डालते हैं जो आगे जाके वीज़ा पे रिजेक्शन आ जाते हैं, जिसकी वजह से यूपी को बहुत सारी जगह ब्लैकलिस्ट करने लगे। तो हमारी जर्नी स्टार्ट ही ऐसे होती है कि हम असेसमेंट उस बेसिस पे करते हैं कि बच्चा पढ़ाई में कितना केपेबल है, क्या वो जा भी सकता है कि नहीं जा सकता, वहाँ सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो उसके क्या रीजंस हैं, उनको हम फिल करते हैं। तो हम काउंसलिंग से स्टार्ट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं और उनको प्रॉपर असेसमेंट करते हैं कि जेन्युइन डिग्रीज होनी चाहिए, जेन्युइन यूनिवर्सिटी से डिग्रीज होनी चाहिए। उसके बाद हम कोर्स का सिलेक्शन करते हैं कि बच्चा किस कोर्स में जाना चाहता है। हम अपनी राय बच्चों पे नहीं थोपते, क्या बच्चे को चाहिए। 70,000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं हमारे पास, तो हम बच्चे से पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और जो भी बच्चे का इंटरेस्ट रहता है उस फील्ड में हम उस बच्चे को कोर्सेज के ऑप्शंस देते हैं। एक बार जब बच्चा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है तब आता है एप्लीकेशन लॉन्चमेंट का प्रोसेस, जो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। कोई एजेंट या मिडिलमैन हमारे बीच में नहीं होता, हमारा सीधा डायरेक्ट टाइप होता है। तो हम फिर एप्लीकेशन लॉन्चमेंट करने के बाद हमारे पास आता है ऑफर, बच्चे का ऑफर आता है, हम उसके साथ शेयर करते हैं। जो भी फीस का पेमेंट है बच्चा डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके करता है। उसके बाद हम उसको अकोमोडेशन में भी हेल्प करते हैं। सेकेंड थिंग, वहाँ पे हमारे बहुत सारे कंपनी से टाइप हैं जो अकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है इंटरनेशनल कंट्रीज में, उनको हम कनेक्ट करके बच्चे की अकोमोडेशन करवाते हैं। उसके बाद उसका वीज़ा फाइलिंग करते हैं, वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराते हैं। जब एक बार उसका वीज़ा आ जाता है तो हम उसकी टिकटिंग में भी हेल्प करते हैं। अराइवल से पहले उसकी टिकट्स बुक होने उस पर भी हमारे पास डिस्काउंट्स हैं। एंड वी मेक श्योर कि जहाँ जहाँ बच्चे के पैसे बच सकते हैं, जो वो अपनी फीस में यूज़ कर पाएगा इफेक्टिवली, वो हम उसको हेल्प करते हैं थ्रू आउट द जर्नी। मैम ऐसा क्या है आप में जिससे बच्चे आपके साथ जाना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारी आज मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन है जो भेज रही है बाहर अब्रॉड बच्चों को, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा है। आजकल लोग इसको बिजनेस की तरह यूज़ कर रहे हैं। यह मार्केट एक करियर मेड मार्केट थी जिसमें हम बच्चों के करियर बनाते थे, वो वैसा रहा ही नहीं है। इसीलिए हमने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। वी डजंट चार्ज एनी स्टूडेंट इवन अ सिंगल पेनी। सो हम पूरा जीरो पेमेंट है हमारी साइड से, बच्चे को हमें कोई फीस नहीं देती। कोई फीस मतलब जीरो फीस। उसमें 10,000 रुपये हम सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए, पहले हम वो भी नहीं लेते थे। एक छोटा सा रीजन है वो करने का, क्योंकि अगर हम 10 बच्चे आ रहे हैं वॉक इन, जिसमें से 8 जेन्युइन नहीं है, तो वो पे करेंगे ही नहीं वो सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि रिफंडेबल है, 100% रिफंडेबल है। लेकिन वो बच्चे पे नहीं करेंगे जो सिक्योरिटी जो जेन्युइन नहीं है, जो सिर्फ ऐसे ही बस देखा तो चले आए, उनको जाना नहीं है। तो जस्ट टू फिल्टर आउट द गुड स्टूडेंट, वो हमने एक रिफंडेबल अमाउंट रखा है जो कि फीस के टाइम पे रिफंड हो जाता है। पहली चीज़ है, हम विदाउट एनी चार्ज थ्रू आउट द जर्नी बच्चे को हेल्प करते हैं। दूसरा, हम एकोमोडेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हम एंड टू एंड जर्नी में बच्चे को हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एप्लीकेशन लॉन्चमेंट के बाद बच्चों को छोड़ दिया, वो वीज़ा अपने आप फाइल कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं। हम प्रॉमिस करते हैं बच्चे को कि जब तक वो अराइव नहीं हो जाता यूनिवर्सिटी में, इनफैक्ट एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक का भी जो उसका जर्नी रहता है, उसके लिए भी हम कैब्स प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे नहीं है कि उसको एयरपोर्ट पे छोड़ दिया और वो खुद जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंक से हम डायरेक्ट टाइप्स करके रखा है हमने, बिकॉज ऑफ आर स्टूडेंट, क्योंकि मिडिल क्लास में ऐसा नहीं होता ना कि हर किसी के पास 50 लाख बैंक में है, नहीं होता। तो उसके लिए हमने बैंक से टाइप किया हुआ है कि अगर किसी पेरेंट्स को ज़रूरत है लोन की, तो हम उसके लिए भी असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। ट्रैवल असिस्टेंस ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कि हम करते हैं। और सबसे मेजर पार्ट, अ डेडिकेटेड काउंसलर। एक स्टूडेंट को थ्रू आउट द जर्नी एक ही काउंसलर हैंडल करता है, क्योंकि अगर नए नए लोग उसकी एप्लीकेशन छूते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि कुछ मिस ना हो जाए। इसलिए हमने डेडिकेटेड काउंसलर, अगर एक एप्लीकेशन किसी को असाइन हो गई तो वो थ्रू आउट द जर्नी वही काउंसलर उसको हैंडल करता है। मैम, हमने सुना है इंग्लिश का
टेस्ट देना पड़ता है, वो क्या होता है? ज़रूर इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि और ऐसा नहीं है हर किसी को देना है, तो उसमें भी कुछ रीजंस और कुछ क्लॉज होते हैं। जैसे कि इंग्लिश टेस्ट होता क्या है, आईएलटीएस, टॉफल, पीटीई, ये कुछ नाम हैं जिनको स्टूडेंट को देना होता है। ये एक टेस्ट है जो चेक करते हैं कि बच्चा इंग्लिश में लेक्चर समझ पाएगा, लिख पाएगा या बोल पाएगा, इसलिए वो टेस्ट होते हैं। डिफरेंट लेवल पे टेस्ट होते हैं। ये सेम चीज़ है बट 3 टाइप्स के टेस्ट हैं। मेजरली कंट्री आइल्स एक्सेप्ट करती है, तो मैंने जो यहाँ पे देखा है मार्केट में आइल्स बहुत चलता है, इसलिए हमने आइल्स की ट्रेनिंग क्लासेस भी अपने सेंटर में ही रखी है। 21 से अभी हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी हमने बच्चों को डिस्काउंट करने की कोशिश की है कि 10,000 अगर रेट है मार्केट में, सो वी आर गिविंग इट फ्लैट 55,000 एंड उसमें हम बच्चे को प्रिपेयर कराते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के मॉड्यूल्स हैं, आइल्स के प्रॉपर प्रिपरेशन करा के हम उसको रेडी करते हैं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा है, उसमें भी अगर किसी बच्चे ने 12th में 70% से ज़्यादा स्कोर करता है, तो देर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज इन यूके जो वेवर दे देती है आइल्स पे, तो आपको देना भी नहीं पड़ता आइल्स। मैम, आप बच्चों से चार्ज नहीं करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को कैसे रन करते हैं? ये तो क्वेश्चन बहुत बार उठता है, अलग अलग मार्केट से लोग आके हमसे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो अगर हम चार्ज नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ एक फिल्टर लगाया है कि हम थोड़ा सा क्लीन अप करेंगे इस बिजनेस में। लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया था, वहाँ ये भूल गए थे कि बच्चों के करियर दांव पे लगे हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल और स्टूडेंट्स करियर, नॉट मनी मेजरली। तो हमारा जो बिजनेस है वो यूनिवर्सिटी से आता है। अगर हमें एक अच्छा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं तो ऑफकोर्स वो हमें कमीशन दे रही है, और अगर हमें यूनिवर्सिटी से कमीशन मिल ही रहा है तो स्टूडेंट को अननेसेसरी चार्ज क्यों करना। मैम, कॉस्ट अफोर्डेबल कितना है आज की महंगाई को देखते हुए? क्या आम आदमी से अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसीलिए हमने ओवर 15 नॉट जस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज, टियर 1, टियर 2, टियर 3 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो कि परसेंटेज के बेसिस पे भी होती हैं और कॉस्ट के, फीस के बेसिस पे भी होती हैं। तो हमने सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज से टाइप नहीं किया है, 1,500 यूनिवर्सिटीज में वो यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं जो 5-6 लाख से भी कोर्स स्टार्ट करती हैं। तो कोर्स 1 करोड़ तक भी जा सकता है, बट स्टार्टिंग 5-4 लाख से भी होती है। और अफोर्डेबल अगर हम देखें तो टॉप कंट्रीज नहीं है, 27 से 40 कंट्रीज के बीच में हम बच्चों को भेजते हैं, नॉट जस्ट यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इट कुड बी n नंबर ऑफ कंट्रीज। मैम, वीज़ा रिलेटेड क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं आप, और किन किन कंट्रियों में बच्चों को भेजते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 40 कंट्री हैं जहाँ पे हम बच्चों को भेज सकते हैं। मेजर पेरेंट्स की चॉइस टॉप कंट्रीज होती हैं, जो कि यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ये मेजर चॉइस में आते हैं। लेकिन हमारे पास 40 कंट्रीज हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लाटविया, एनीवेयर पीपल वांट्स टू गो, वी सेंड इट। और अगर वीजा की बात करें तो हम फाइलिंग से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेके जब तक उसका वीजा आ नहीं जाता, प्रॉपर एक हमारे पास काउंसलर्स हैं जो वीजा के इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपको बोलना है, क्या आपको नहीं बोलना है, क्योंकि कई बार आपको नहीं पता होता कि किस चीज में आपका वो नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाए। तो हम उसके लिए भी प्रॉपर प्रिपरेशन कराते हैं बच्चे को, क्योंकि एक बच्चा बहुत रॉ होता है जब वो 12th करके आता है, उसको कुछ नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, इसलिए प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद में हम उसको वीजा इंटरव्यू के लिए भेजते हैं, और वो हम प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन हेल्प करते हैं। मैम, कुछ यूनिवर्सिटी ने भारतीय बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में बैन किया है, उन्हें क्या सतर्कता रखनी चाहिए? राइट, तो ऑफकोर्स हम किसी यूनिवर्सिटी और कंट्री का नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में पंजाब बैन है, बहुत सारी कंट्रीज में यूपी, हरियाणा बैन है, ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज में, और बहुत सारी नहीं, किसी यूनिवर्सिटी ने इंडिया को बैन किया हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमारा जो पोर्टल है, अगर हमारा किसी यूनिवर्सिटी से टाइप है और वो इंडिया को बैन कर देती है, इट विल बी रिमूव्ड अपने आप, हमारी यूनिवर्सिटी वो हट जाएगी पोर्टल से,
और हमारे को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑफर ही नहीं जनरेट कर सकते हमारे लिए। उसी में होता क्या है, बच्चा अपने आप चला जाता है। अगर बच्चा, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे थ्रू जाओ। पहले बच्चे एजेंट्स की हेल्प लेने में घबराते थे, क्योंकि उनको लगता था फीस तो अरेंज करनी ही है, इनका भी अपना 1-1.5 लाख चार्ज होगा जो मुझे अरेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला मॉडल रखा है। जो बच्चे ऑनलाइन जाके अपने आप एप्लीकेशन डालते थे और एप्लीकेशन थ्रू नहीं होती थी, 2-2, 3-3 साल वो लोग कोशिश करते थे और कभी कभी फ्रॉड में भी फंस जाते थे, तो इसीलिए हमने अपना ये पोर्टल रखा है उनकी हेल्प के लिए कि बच्चे हमारे पास आए और हम प्रॉपरली जेन्युइन यूनिवर्सिटी, जेन्युइन जगह पे ही उनको भेजेंगे, जिससे कि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। उनके माता पिता की हार्ड अर्न मनी है जो ऐसे वेस्ट नहीं जानी चाहिए और उसका करियर दांव पे नहीं लगना चाहिए। मैम, आपकी संस्थान और आपकी कंपनी का मंत्र क्या है मैम, विजन क्या है? हमारा विजन अभी ऐसा नहीं है। तो आवर विजन इज टू ब्रिंग द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन क्लोजर टुगेदर एंड मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। बट हम अभी वही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम स्प्रेड कर पाए ये स्टडी, इंटरनेशनल स्टडीज को स्टूडेंट्स के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, वो हमारे लिए अचीवमेंट होगा। मैम, आप कुछ मैसेज देना चाह रही हो स्टूडेंट को या उनके पेरेंट्स को? बिल्कुल, हम मैसेज के लिए बस यही बोलना चाहूंगी मैं, वन लाइन, कि जो भी पेरेंट्स अभी तक सोच रहे थे कि फ्रॉड तो नहीं है, कैसे हमारा बच्चा जाएगा, इज इट सेफ टू सेंड आवर स्टूडेंट्स और चाइल्ड्स आउटसाइड, प्लीज डू कम, वी आर सिटिंग हियर एंड वी टेक फुल गारंटी ऑफ योर चाइल्ड from the beginning till arrival, not just arrival. We have an office in London as well. Forget any case student face any problem, they can visit to our London office and feel free to visit it. We are here to help you guys. मैम, आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रही हो? चैनल को बस इतना सा मैसेज है, जो आज आप स्टडी अब्रॉड के लिए मैसेज लेके जा रहे हैं और जो भी आपके सब्सक्राइबर्स होंगे या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर यू गाइज टू स्प्रेडिंग सच अ गुड मैसेज आउटसाइड द वर्ल्ड। मैम, बरेली एजुकेशन न्यूज़ विशेस यू ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड फॉर योर इंस्टीट्यूशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।